जी अस्सलाम वालेकुम students. Today we are going to solve question number 4 and 5 from the worksheet number 5 containing the topic discount, taxation and the commission. Now moving to the question number 4. Here is the statement. Louis bought an antique vase at a discount of 15%. How many percentage of the discount? Discount percentage is 15 discount percentage. He received a discount of $384. 384, that is the discount amount. Now calculate the mark price of the vase. We have to calculate the mark price of the vase. Now moving to the whiteboard. Here I solve the question number 4 with the containing data. Discount percentage is 15% discount amount, that is the $384, and we have to calculate the mark price, which is equals to which we have to calculate. Now moving to the solution, as we know that discount percentage is equals to discount over mark price multiplied by 100%. This is the formula. Now mark price will be shuffled here and discount percentage will be shuffled here. Mark price, which is equals to discount over discount percentage multiplied by 100. What is the value of discount? That is the 384, and $384 divided by 15 multiplied by 100% and 15%. Now after calculation, here is the answer, $2,560. Now moving to the question number 5. Here is the statement. First of all, we will discuss the statement. Question number 5. Two online retailers sell identical sets of crockery, retailer A and the retailer B. Stainless steel crockery, इसमें देखिए ये usual price है, that is the mark price, and same as it is the usual price for retailer at retailer B. Usual price $126 and usual price $126. So that means both containing the same price, same mark price, that is the $126. Now retailer A is directly giving how many percentage of the discount? 10%. But the retailer B firstly give the discount 8%, then after that give the discount 2%. अगर हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं वर्बली या डायग्रामेटिकली, ये स्टेटमेंट हम फिलहाल इसको देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, what is the first part? Find the sale price of the set of crockery at the retailer A. retailer A के पास जो सेल प्राइस होगी हम उसको डिस्कस करेंगे. आप डाटा देखें जो हमारे पास है. यूजुअल प्राइस, दिस इज बेसिकली मार्क प्राइस एंड दैट इज द डिस्काउंट परसेंटेज. प्रीवियसली हमने क्वेश्चन नंबर 4 में जो फॉर्मूला अप्लाई किया था, वो आप देखें हमारे पास जो मार्क प्राइस आ गए और डिस्काउंट परसेंटेज आया है, तो हम इसी को यूटिलाइज करते हुए इसकी क्या फाइंड करेंगे? सेल प्राइस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 10% डिस्काउंट की अमाउंट का पता होना चाहिए. 10% इसका बनेगा आई थिंक सो $12.6. उसको इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि जो डिस्काउंट की अमाउंट होती है वो तो हम पे नहीं करते, हमें रिमेनिंग पे करनी पड़ती है. एंड नाउ ग्रैंडमा लूसी क्लेम्स एट द पार्ट 2. Now Grandma Lucy claims that the set of crockery cost 20 cents less at retailer A. वो ये कहना चाह रही है कि जो हमारे पास था रिटेलर ए के पास जो हमें मिल रही है, रिटेलर ए के पास मिल रही है, ये प्रेफरेबल है और ये कितने सेंट्स चीपर है? 20 सेंट्स है, बल्कि ये क्या है, थोड़ी सी कॉस्टली है. ठीक है, ये क्वेश्चन को आपने क्रॉस नहीं करना, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया. हम मूव करते हैं क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड की तरफ. तो इसमें देखें जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें रिटेलर ए का मैंने बॉक्स बनाया और रिटेलर बी का. क्रॉकरी सेम है, मार्क प्राइस उनकी 126 लिखी गई है दोनों की. फर्स्ट में जो रिटेलर ए है उसमें सिर्फ एक दफ़ा ही 10% दिया जाता है. आप कंसिडर करें आपकी क्लास का आपके पास एक क्रॉकरी का सेट है, आपने देना है एक स्टूडेंट को. अगर हम केस ए की बात करते हैं, रिटेलर ए की, और फिर रिटेलर बी की बात करते हैं, आप इस सिचुएशन को इस तरह से अंडरस्टैंड करें कि हमारे पास जो क्रॉकरी का सेट है वो $126 का है. हमने उसको सेल करना है अहमद को. एक ही स्टूडेंट है, अहमद को सेल करना है और 10% डिस्काउंट के साथ करना है. अगर हम बी की बात करते हैं तो इसमें देखिए आपके पास जो क्रॉकरी का सेट है आप अहमद को देते हो 8% के साथ. जो आपकी सेल होगी, जो आपकी सेल बनेगी, आपने जिस प्राइस पे सेल किया वो उसकी क्या बन जाएगी? कॉस्ट प्राइस. और इसके पास पड़ी होगी तो डेफिनेटली वो उसकी क्या बनेगी? मार्क प्राइस. ठीक है, मार्क प्राइस बनेगी. अब ये जो है, ये जो इस मार्क प्राइस पे अहमद जो है वो इस मार्क प्राइस का फर्दर 2% लगा के अली को दे देगा.
ठीक है। 2% डिस्काउंट लगा के अली को देगा, यानी 2% डिस्काउंट क्या करेगा, उसकी डिस्काउंट की अमाउंट को माइनस करेगा, अली को देगा। तो इसलिए जो पार्ट ए है इसमें डायरेक्टली वन टाइम 10% डिस्काउंट मिलता जा रहा है और इसमें वन आफ्टर अदर, ठीक है, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, इस तरह से 2 कंडीशंस मिला के इसमें टोटल 10% दिया गया, लेकिन नॉट एड अप 8% एंड 2%। ये डायरेक्टली नहीं है बल्कि ये क्या है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में है कि आप पहले अहमद को देते हैं और अहमद आगे फर्दर सेल करेगा किसको, अली को। ये स्टेटमेंट मैंने जो आपके बुक में वर्कशीट में जो आपका क्वेश्चन है इसको मैंने थोड़ा सा डिटेल से इस तरह से समझाने की कोशिश की है। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पेज की तरफ। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखें पार्ट ए में हमें क्या पूछा गया था कि हम क्या करेंगे, जो पार्ट ए है उसमें हमें पार्ट ए में 1 में क्या लिखा गया, फाइंड द सेल प्राइस ऑफ द सेट ऑफ क्रॉकरी एट रिटेलर ए। हमें रिटेलर ए के पास जो क्रॉकरी का सेट है वो फाइंड करना और उसकी सेल प्राइस फाइंड करनी है। सेल प्राइस एट रिटेलर ए, सेल प्राइस इज इक्वल टू टोटल मार्क प्राइस जितनी होती है उसमें से डिस्काउंट अमाउंट को माइनस किया, क्योंकि डिस्काउंट अमाउंट हम पे नहीं करते। मार्क प्राइस हमारी कितनी लिखी गई है, $126, $126 and the discount amount we have to calculate for 10% of mark price which is the $126. Now 10% discount same as it is, प्लस माइनस करने के बाद ये कैलकुलेशन की तो हमारे पास आंसर आया सेल प्राइस का, सेल प्राइस ऑफ एट रिटेलर ए दैट इज द $113.40। ठीक है जी। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट इसमें देखिए क्या ग्रैंड मालूसी क्या करती है, उसने क्लेम किया है कि जो सेट ए है वो 20 सेंट्स क्या है, चीपर है। उन्होंने पूछा डू यू एग्री विद ग्रैंड मालूसी, शो वर्किंग एक्सप्लेन टू योर आंसर। मूविंग टू द व्हाइट बोर्ड, हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। हमारे पास है नेक्स्ट पेज, यहाँ पर देखें वही जो कंडीशन है आप अहमद को देते हैं, अहमद अली को देते हैं। ये मैंने थोड़े से डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है। सेल प्राइस आफ्टर 8%, हमने वही सेम पहले वाला फार्मूला अप्लाई किया, मार्क प्राइस जितनी ऑलरेडी है उसमें से डिस्काउंट अमाउंट को माइनस किया। 8% पहले डिस्काउंट आ रहा है, डिस्काउंट देने के बाद जो हमारी रिड्यूस्ड प्राइस है, ये कौन सी प्राइस है, रिड्यूस हो गई है, जो अहमद के पास चली गई है। ठीक है, ये रिड्यूस जो प्राइस है, रिड्यूस प्राइस हमारे पास आई $115.92। अब फर्दर उसने अहमद जो है वो 2% डिस्काउंट देता है और किसको देता है, अली को देता है। अब अहमद जो डिस्काउंट देगा वो आपकी वाली अमाउंट का डिस्काउंट देगा या अहमद के पास जो ऑलरेडी मौजूद है 115.92, दिस वन 115.92। तो अहमद डेफिनेटली जो अहमद के आपने जब डिस्काउंट दिया तो आपने अपनी मार्क प्राइस का डिस्काउंट दिया, तो जब अहमद देगा तो अहमद के पास जो मार्क प्राइस होगी यानी जो आपकी सेल बनी थी उसकी मार्क बन गई, वो उसका 2% देगा। सो हम कहते हैं कि सेल प्राइस आफ्टर फर्दर 2% डिस्काउंट, रिड्यूस प्राइस जो इसी में से, क्योंकि अहमद अब अपनी में से माइनस करेगा डिस्काउंट अमाउंट को, ये उसकी कैलकुलेशन की 2% निकाला और फर्दर इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसकी वर्कशीट पे चलते हैं। फर्दर डिस्काउंट करने के बाद जो लास्ट पे आंसर आया है $113.60। रिजल्ट में हम देखते हैं कि रिटेलर ए जो आंसर लेके आ रहा है $113.40, रिटेलर बी लेके आ रहा है बी का आंसर आया 113.60। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, आप देखें रिटेलर ए के पास जो प्राइस आई है वो थोड़ी सी कॉस्टली है और कितनी कॉस्टली है, इनका डिफरेंस लिया तो $0.20। अब आप देखें जो पॉइंट से पहले वाला पोर्शन होता है दिस इज द डॉलर एंड आफ्टर द डेसिमल दैट इज द सेंट्स। तो आप देखें इसको कंपेयर करें तो $0.20 जो डॉलर है वो कितने सेंट्स बनता है, 20 सेंट्स। यस, ग्रैंड मालूसी इज करेक्ट, द सेट कॉस्ट 20 सेंट्स लेस एट रिटेलर ए देन एट रिटेलर कॉस्ट। ठीक है जी, रिटेलर बी, ये इसका रिजल्ट था। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।